آج کا خداوند کا کلام ہے گلتیوں کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 23ویں آیت۔ حلم پرہیزگاری ہے، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج ہم پرہیزگاری کے پھل کو خداوند کے روح سے جو خدا نے بتایا ہے سیکھیں گے کہ پرہیزگاری کا جو پھل ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ہم بہت سے پھلوں کے بارے میں تو سنتے ہیں، جانتے ہیں، نیکی کرنی ہے، راست بازی کرنی ہے، صبر کرنا ہے، برداشت کرنی ہے، خوش رہنا ہے، محبت کرنی ہے، لیکن ہم لوگ پرہیزگاری کے پھل کو نہ جانتے نہ سمجھتے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں ہم پرہیزگاری کے پھل کا نہ نام لیتے ہیں، نہ اس میں کام کرتے ہیں، نہ اس میں ہم محنت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے جو پرہیزگاری کا مطلب ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں کہ پرہیزگاری کا مطلب ہے جو نوکا ٹوکی اور منع کیا جاتا ہے کہ ان کاموں سے روکا جاتا ہے۔ پرہیزگاری ہوتی ہے کہ جن کاموں سے آپ کو روکا جائے، آپ ان کو جب نہیں کرتے تو آپ اس میں پرہیزگاری کرتے ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ ہے ہماری پرہیزگاری۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے خدا ہمیں پرہیزگاری سکھاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیں منع کرتے، ٹوکتے، باز کرتے اور روکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ماں باپ جو ہیں وہ ہمیں روکتے، ٹوکتے، منع کرتے اور باز کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ہمارے استاد ہوتے ہیں وہ ہمیں اسکولز میں، کالجز میں وہ ہمیں منع کرتے، روکتے ہیں، باز کرتے اور کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا۔ اب استاد میں ہمارا چوپان بھی آتا ہے، وہ بھی ہمیں جو چرچ میں سکھاتا ہے، بتاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے اور ٹوکتا ہے اور کہتا ہے باز رہو، یہ کام نہیں کرنا۔ پرہیزگاری کا مطلب ہی ہے کہ یہ نہیں کرنا، اس سے روکا جاتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ رشتے میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی جب برا کام کوئی دیکھتا ہے تو یا اس برے کام کی وجہ سے برے نتائج سامنے آتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہ کرو۔ اس کو روکا جاتا ہے اور باز کیا جاتا ہے کہ خبردار یہ کام کیا۔ اور اس میں غصہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں نرمی سے بھی کہا جا سکتا ہے، اس سے چھڑی کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے، اور کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے۔ اب بڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی منع کرتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرہیزگاری کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا اور روکنا۔ ہو سکتا ہے آپ کا دوست، آپ کا ہم عمر بھی آپ کو غلط جس کے نتائج ہوں آپ کو منع کرے کہ یہ کام نہیں کرنا، اس سے باز آ، اور وہ آپ کو روکے۔ اب یہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ رشتے جو ہیں وہ ہمیں روکتے، منع کرتے ہیں، لیکن یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ ہمیں ایکچولی ہماری زندگی میں ہمیں منع کر کے ہمارے اندر پرہیزگاری کا پھل پیدا کرنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں، ہم وہ سیکھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پیشنٹ، کوئی مریض جس کو شوگر ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس کو سب سے پہلے پرہیزگاری کا لفظ سکھاتا ہے، دوائی سے بھی پہلے۔ اس کو میڈیسن نہیں بتا رہا تھا، اسے یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے تندرست رہنا ہے، یا تو نے اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے، یا تو نے اچھی زندگی دیکھنی ہے، یا مزید زندہ رہنا ہے، یا جو اس کے برے نتائج ہیں اس سے تو بچا رہنا چاہتا ہے، ان برائیوں سے بچا رہنا چاہتا ہے اور برا نہیں دیکھنا چاہتا، تو پرہیز کر۔ تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ پرہیز سکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہر میٹھی چیز جس میں شوگر ہوگی وہ تو نے نہیں کھانی۔ اب جو عقل مند شخص ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اس پرہیزگاری کی بات کو سمجھ جائے گا کہ پرہیز کرنا میری زندگی کے لیے، میرے آرام کے لیے، میری تندرستی کے لیے کتنا ضروری ہے۔
तो परहेजगारी किसको फायदा दे रही है? डॉक्टर जो कह रहा है उसको नहीं, जो सुन रहा है, जिसको जरूरत है उस परहेजगारी की, उस बीमारी में उस परहेजगारी की, वो क्या करे? वो उस परहेजगारी को करेगा तो उसको बुरे नताइज का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है जो परहेजगारी का फल है वो हमें अच्छे नताइज और अच्छी ज़िंदगी, खुशी और इत्मीनान देता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम एक और बीमारी को देखते हैं, ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तब भी डॉक्टर दवाई के साथ क्या करते हैं? यही कहते हैं कि गोश्त, अंडा और नमक वाली चीज़ें आप ना खाओ, नमक का इस्तेमाल कम अज़ कम करो, ताकि आपको ये बीमारी जो है वो आपके जिस्म पर ज़्यादा हावी ना हो जाए और आपको इसके बुरे नताइज ना देखने पड़े। तो अक्लमंद शख्स क्या करेगा? वो इससे परहेजगारी शुरू कर देगा और अपने आप को तकलीफ से बचा लेगा। अब हम ये देखते हैं कि परहेजगारी जो है जब बताई जाती है तो ये जिस्मानी है। अब हम ये देखते हैं कि जिस्मानी तौर पर जब हम परहेजगारी कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा हो रहा है। तो अब हम दूसरी साइड पे देखते हैं रूहानी परहेजगारी। हर इंसान जिस्म के अंदर रूह रखता है, लेकिन हम अपनी परहेजगारी को जिस्म पर तो बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। कुछ एक्सरसाइज करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने जिस्म का इतना ध्यान रखते हैं, हमने ये खाना है, हमने ये नहीं खाना, हमने एक्सरसाइज करनी है, हमने इतने बजे उठना है, हमने इतने बजे जिम जाना है। तो जिस्म के लिए वो क्या करता है कि जो जो उसके जिस्म को नुकसान देता है वो उसे परहेज करता है और वो खाता है जो उसके जिस्म को फ़ायदा देता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जिस्म है जो फ़ानी है, जो यहाँ पर मर जाएगा, दफन हो जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा, मिट्टी के साथ मिल जाएगा, जो हमारी हकीकत है, हम उसके लिए इतनी ज़्यादा परहेजगारी करते हैं जिसका उसके बाद हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। हम दुनिया में दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर इतना परहेज़ करने की कोशिश करते हैं और इतना हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी हम इस अच्छे फल का यानी परहेजगारी का हम इस्तेमाल करेंगे जिस्मानी तौर पर भी, तो हमें उसके अच्छे नताइज ही मिलेंगे, हासिल होंगे और उससे हमें फ़ायदा होगा और नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा, दुख तकलीफ़ नहीं होगी। अब हम ये देख लिया कि ये जिस्मानी है, लेकिन हमारी रूह, हमारे जिस्म के अंदर रूह है जो नहीं मरेगी। ना मरने का मतलब ये है कि वो ज़िंदा इस तरह से रहेगी, या फिर वो रूह अपने हमारे ईमान और अमाल की वजह से, अच्छे अमाल की वजह से खुदावंद के पास जाएगी, या फिर वो रूह बेईमानी की वजह से, यीशु मसीह पर ईमान ना रखने की वजह और अमल ना करने की वजह से कलाम मुकद्दस पर हमेशा की आग में जाएगी। अब ये जो रूह है, जिस्म तो फानी है, लेकिन जो रूह है वो सदा रहेगी। अब वो कहाँ रहेगी? अच्छी जगह रहेगी या बुरी जगह रहेगी, ये हमारा काम है। अब हम क्या करते हैं, अक्लमंद वो है जिसने डॉक्टर की बात सुन के ये सोचा कि मैं ये परहेज कर लूं ताकि मेरी जान बची रहे। हम अपनी रूह के लिए क्या परहेजगारी करते हैं? हमें वो रूह जो हमें मालूम है कि हमेशा की ज़िंदगी में भी जा सकती है और आग में भी जा सकती है। अब अक्लमंद ये है कि हमें अपनी रूह में इतनी परहेजगारी करनी चाहिए ताकि हम हमेशा की आग से और बुरे नताइज से, दुख से, तकलीफ से, आग से जो फॉरएवर है, हमेशा के लिए है, जो जिसकी आग कभी नहीं बुझेगी, जिसका कीड़ा कभी नहीं मरेगा, वहां से हम बच जाए। अब अक्लमंद कौन है? हम उसको देखते हैं कि अक्लमंद कौन है। अब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से कुछ परहेजगारी के लफ्ज़ जो हैं वो सीखते हैं। जैसा कि मैंने खुदा के बाद नाम लिया माँ बाप। जब माँ बाप अपने बच्चों को परहेजगारी के लफ्ज़ बोलता है तो वो कैसे होते हैं? उसमें बच्चे को गुस्सा नहीं करना चाहिए, झुंझलाना नहीं चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए, बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, गुरूर नहीं आना चाहिए और नाफरमानी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर वो आपको परहेजगारी के लफ्ज़ बोलकर आपकी ज़िंदगी को सुधार रहा है तो इसका मतलब वो आपकी रूह के अंदर परहेजगारी के फल
डाल रहा है। अब हम पहले रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को परहेज़गारी कैसे सिखाते और बोलते रहते हैं, हो सकता है माँ बाप को भी ना पता हो कि वो परहेज़गारी का फल सिखा रहा है, क्योंकि वो हो सकता है वो चौपान नहीं है, हो सकता है उसको इस तालीम का पता ना हो सकता है वो रूहानी ना हो सकता है कि वो मसीह को ना जानता हो सकता है इस फल से वो ना वाकिफ़ हो। लेकिन फिर भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि वो बड़े होते हैं और उन्होंने तजर्बा किया होता है, उन्होंने ज़िंदगी देखी होती है, उनको पता है कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें बुरी हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमें परहेज़गारी सिखाते हैं। जैसे हम सीखते हैं, जैसे जब माँ बाप ये कहते हैं बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, सुबह स्कूल कॉलेज जाना है, इसका मतलब है माँ बाप परहेज़ करके क्या कहते हैं, अब आज़ादी से रोकते हैं कि आज़ाद ना रहो, कि जब मर्जी सो जब मर्जी उठो, उनको रोका और मना किया जा रहा है। और वो क्या करते हैं, अपनी वही खुशी जो हो सकता है उन्होंने और मज़ीद खेलना है, टीवी देखना है, कोई दुनिया का काम करना है, या उन्होंने अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजारना है, या उन्होंने फ़ोन पे बात करनी है, तो माँ बाप उनको इनडायरेक्टली रोक के परहेज़गारी का फल डाल रहे होते हैं कि बस कर दो, रुक जाओ, मना कर रहे होते हैं दुनिया के बाकी कामों से, और कहते हैं कि नहीं सुबह उठना है क्योंकि आपने जाना है, और साथ वो वजह भी बता देते हैं कि ये तेरे लिए भलाई है, इसके बाद तेरी नींद नहीं पूरी होगी या स्कूल में सो जाएगा तो जो अच्छी चीज़ है वो तेरी ज़िंदगी में नहीं होगी, इसलिए वो रोकते हैं। इसी तरह जब बच्चा टीवी देखता है और लगातार देखता जाता है, और जब माँ बाप ये कहते हैं कि बस कर दे, रुक जा, अब और ना देखना, इससे बेहतर है कि आपने टीवी देख लिया, इससे थोड़ा आप देख लिए, अब ये है कि थोड़ी देर बंद कर दो, तो रोका, परहेज़ कराया कि बंद करके इसकी जगह दुआ कर लो। और अगर आप स्टूडेंट हो तो अगर आपका कोई होमवर्क है, कोई टेस्ट है, या आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो आप अपना, अगर ऑफिस में जा रहे हो तो अपना ऑफिस का काम कर लो। तो माँ बाप क्या करते हैं, उनको टीवी से एक टाइम रोकते, मना करते हैं। जो बच्चा उस वक्त बात मान के टीवी को बंद करके दुआ कर लेता है या उसके बाद पढ़ लेता है, तो इसका मतलब है उसने ये परहेज़गारी का फल अपने अंदर आने दिया। लेकिन इसको कायम रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि जब बच्चे बुरे दोस्तों के साथ या बुरी कंपनी में बैठता है, तो हम बड़े अपने बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा ये जो दोस्त है ना ये अच्छा नहीं है, इसकी दोस्ती अच्छी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको मना करते और रोकते हैं, इसके साथ नहीं बात करनी, इसके साथ नहीं खेलना, इसके साथ आपने फ़ोन पे बात नहीं करनी, ये बुरा है, ये आपको बुराई सिखाएगा। तो हम क्या करते हैं, रोकते हैं। जब जैसे जैसे हम रोकते हैं, बच्चों की आज़ादी और खुशी ख़त्म होती है और वो सुकड़े रास्ते में आना शुरू होते हैं, वो कैद और बंद महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि ये बात, और उसके बाद जब हमारी कोई फैमिली में ऐसे या रिश्तेदार ऐसे भी हो, खुदा ना करे हों, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो ज़्यादा अय्याश होते हैं, शराबें अपने घरों में पीते हैं, खुले आम सिगरेटें पीते हैं, नाच रंग करते हैं, तो उनका माहौल बहुत गंदा होता है और बुरा होता है, खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ होता है। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चे अगर ज़िद करें नहीं मैंने फ़लाँ के साथ, उनके बच्चों के साथ खेलना है, हम उधर चले जाएं, तो माँ बाप क्या करते हैं, कहते हैं हमने वहां नहीं जाना, तो हम परहेज़ करते हैं और बच्चे को मना करते हैं कि हमने वहाँ नहीं जाना, बेटा आप लोगों की वहाँ पे जाके आदतें ख़राब हो जाएंगी, उनका माहौल अच्छा नहीं है। तो हम एक टाइम में उन्हें रोक कर, हाँ बच्चे उस वक्त ये महसूस करेंगे हमारे माँ बाप हमें कहीं लेके नहीं जाते, लेकिन इसके लेके जाने का बीच में फ़ायदा ये है कि बच्चे की रूह ख़राब नहीं हो रही होती, और लेकिन वो सबसे पहला कदम जो होता है वो है परहेज़गारी के रोक दिया। इसी तरह जब हम आम अपनी ज़िंदगी में
زبان کا استعمال کرتے ہیں، بچے بدتمیزی سے بول رہے تھے، اونچا بول رہے تھے. میں ماں باپ کی بات نہیں کر رہی، سم ٹائمز کئی دفعہ استادوں کے ساتھ بولتے ہیں، پرنسپل کے ساتھ بول آتے ہیں، بڑے ہیں نا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بول لیتے ہیں، یا جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بولتے ہیں، یا سڑک پہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ برے طریقے سے بات کرتے ہیں. تو ہم جاتے جاتے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، بیٹا بری بات ایسا نہیں کہنا، ہم ان کو روکتے ہیں. کئی دفعہ بچے یہ کمپلین کرتے نہیں ہمارا دوست ہماری فرینڈ نے ہمیں یہ کہا تھا، ہم کہتے ہیں اگر اس نے کہا تھا آپ نہ کرو، وہ کہے گا وہ آزادی سے پھریں، ہم کیوں رک جائیں، اس نے غلط کیا اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، ہمیں کیوں روکا گیا؟ ہمیں اس لیے روکا جاتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے اندر پرہیزگاری کا پھل رکھنا ہے، ڈالنا ہے، ہم نے خود اپنی روح کو بچانا ہے. خدا کا یہ پھل ہے اور کوئی شریعت اس سے منع نہیں کرتی. یہ سارے پھل ہونے کی وجہ سے ہی ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. اب ہم نے یہ روزمرہ کی دیکھی زندگی جس میں نوکا ٹوکی ہوتی رہتی ہے، ماں باپ منع کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ جب روزمرہ کی زندگی سے سیکھ لیا کہ کس طرح سے پرہیزگاری کی جاتی ہے اور ہوتی ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے کس طرح سے ہمیں روکتے ٹوکتے اور منع کر کے کہتے ہیں پرہیز کرو، تنگ اور سکڑا رستہ اپناؤ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سبت کے دن کو پاک مناؤ، کوئی بدنی کام نہ کرو، تو اس کا مطلب ہے خدا آؤٹنگ سے منع کریں، سیر سپاٹے سے سبت کے دن منع کریں، خرید و فروخت سے منع کریں، جسمانی ہر کام سے، ہر خوشی سے منع کریں، شادی بیاہوں سے منع کریں، مہندیوں سے منع کریں، پارٹیوں سے منع کریں، برتھ ڈیز منانے سے خداوند منع کر رہے ہیں. اگر ہم منع نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہم پرہیز کرنا پسند نہیں کرے. اب خدا ہم سے پرہیز چاہ رہے ہیں، کس دن؟ صرف سبت کے دن. 7 دنوں میں ایک دن منع کر رہے ہیں نہ کرو. اور ہمیں بہت تنگی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہم جب اپنے ارد گرد دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو لوگ سنڈے کو سبت کا دن نہیں کہتے، ویکینڈ کہہ کے، اور کہتے ہیں یہی ہماری چھٹی کا دن ہے، اسی میں تو ہم نے مزے کرنے ہیں. اور جب ہمارے بچے، جب ہم ان کو کلام کے وسیلہ سے منع کرتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ سبت کے دن کہیں نہیں جانا، کچھ نہیں کرنا، صرف عبادت میں رہنا، روحانی رہنا، روح کے پھل کمانے، خدا کے ساتھ صرف وقت گزارنا ہے، پاک دن ہے، پاکیزگی کے ساتھ گزارنا ہے، تو جب بچے دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو وہ چڑھتے ہیں. جو لوگ دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو فوراً ٹھوکر کھاتے ہیں کہ ہم کیوں نہ کریں. ہم اس لیے نہ کریں کیونکہ ہم نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ زنا کاری نہ کر. اب خداوند ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی بری نگاہ سے کسی عورت کو دیکھ لیا، اس نے اس کے ساتھ زنا کر لیا. اب کیا ہو رہا ہے کہ دیکھنا بھی یسوع کہہ رہے ہیں کہ نہ دیکھو. اب بچے جو ہیں یا لوگ جو ہیں، آدمی، عورت، لڑکے، لڑکیاں، وہ دائیں بائیں آتے جاتے دیکھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تکتے ہیں اور پھر ہوٹنگ کرتے ہیں. لیکن ہمارا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پرہیزگاری. جہاں جا رہے سیدھا دیکھتے جاؤ، دائیں بائیں عورتیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور مرد دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زناکاری ہے. بے شک آپ ٹی وی دیکھتے ہو، آپ ٹی وی میں ایسی کوئی گندی بات دیکھتے ہو، برا سین دیکھتے ہو، کچھ دیکھتے ہو ایسا جس میں زناکاری ہو، آپ اس کو نہ دیکھو. یہ ہماری پرہیزگاری کا پھل ہمارے اندر آئے گا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم جب چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ، میں بار بار کہہ رہی ہوں، دوسرے لوگ آزادی اور خوشی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب ہم پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی کاٹ رہے ہوتے ہیں اور خدا جو ہمیں منع کرتے رہتے ہیں، ہم منع ہو کے اپنی وہ خوشیاں ہم دباتے جاتے ہیں اور سکڑا اور تنگ رستے میں سے گزرتے رہتے ہیں. اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب ہم خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اپنے جیسے مرضی فرینڈز بناتے ہیں اور راتوں کو لیٹ بیٹے آ رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں آ رہی ہوتی ہیں، فرینڈز کے ساتھ شاپنگ ہو رہی ہے، فرینڈز کے ساتھ ہوٹلنگ ہو رہی ہے اور مزے آ رہے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں اور ہر طرح کا نشہ جو وہ کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں.
हर तरह के गंदे कपड़े अगर वो पहन सकते हैं वो पहन लेते हैं, जिसके साथ मर्जी आप फ्रेंड्स बना कर बैठे हुए हो, लेकिन खुदावंद का कलाम मना करता है। अब हम क्या करते हैं, इस परहेजगारी वाली ज़िंदगी में अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं बेटा, वो ऐश कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, होटलिंग कर रहे हैं, बेटा हमारी ज़िंदगी ये नहीं है, हम सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जिनको मना किया जाता है वो मर्द है, औरत है, बच्चे हैं, बहन है, भाई है, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो देखता है मैं तो बोर होता हूँ, वो मज़े करते हैं, मैं तो बोर होता हूँ, वो तो खुश रहते हैं, मैं तो बोर हो रहा हूँ, इस वक्त वो हंस रहे हैं, मैं तो बोर हो रहा हूँ और मेरा टाइम है, मैं जल्दी सो भी जाता हूँ। वो रात रात मज़े करते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं और अय्याशी कर रहे हैं। अब अय्याशी वाली ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मना की है और हम परहेजगारी करके बंद कमरों के अंदर रहकर दुआ करते, बंदगी करते हैं और अपनी ज़िंदगी को सादा बनाते हैं। अब हम ये देखते हैं एक और परहेजगारी कलाम मुकद्दस में से कि जब हमें खुदावंद कहते हैं ज़ुबान पर लगाम दो। लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, बेशक वो ज्यादती कर देते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं और लेकिन हम क्या करते हैं, आगे से हम अपनी ज़ुबान को परहेजगारी में रखते हैं, हम काबू में रखते हैं, हम उसको लगाम में रखते हैं। फिर खुदावंद हमें कहते हैं गाली नहीं देनी, गाली ना दो, गाली नहीं बकनी। तो हम अपने बच्चों को कहते हैं कि उसने तो हमें गाली निकाल दी, मैं क्यों ना दूं। हमें परहेजगारी में रहना है। अब हम एक और नुक्ता देखते हैं कि जिसमें है रोज़ा। जब हम रोज़ा रखते हैं तो जो लोग रोज़े नहीं रखते वो क्या करते हैं, वो ऐश के साथ जब मर्ज़ी उठते हैं, जब मर्ज़ी सोते हैं, जितना मर्ज़ी खाते हैं, जो मर्ज़ी खाते हैं, जितना मर्ज़ी लजीज खाते हैं, उनका पेट भरा रहता है, उनको भूख जो है वो बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम जब रोज़ा रखते हैं तो हमें क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, भूख। तो खुदावन जब रोज़े के लिए हमें कहते हैं और हम खुदा के हुज़ूर रोज़े में आते हैं तो हमें किससे परहेज़ करना पड़ता है, रोटी पानी से हम परहेज़ करते हैं। हम हर खुशी से परहेज़ करके उस दिन सारा वक्त दुआ में गुजारने की कोशिश करते हैं। तो हम ये परहेजगारी वाली ज़िंदगी जीते हैं। अब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि परहेजगारी वाली जब ज़िंदगी जी जाती है, जब दुनिया जो है बाहर ऐशो इशरत करती है और मज़े करती है, मज़े लूटती है, और हम जो मसीही हैं जब खुदा के कलाम को सुनते, सीखते हैं और जानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम परहेजगारी वाली ज़िंदगी जी कर हमें फ़ायदा तो बाद में होगा, हम उस वक़्त क्या महसूस करते हैं, कौन सी ज़िंदगी महसूस करते हैं, कैसी ज़िंदगी महसूस करते हैं, हमारे ऊपर कौन सा पहाड़ होता है, वो हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत। क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। पहली बात है, पाने वाले थोड़े हैं, इसका मतलब है अक्लमंद लोग थोड़े हैं जो डॉक्टर की बात नहीं मानते और नुकसान उठाते हैं। जो ज़िंदगी को पहुंचाता है, हम वो देखते हैं कि कौन सी बातें हैं जो ज़िंदगी को पहुंचाती हैं। तंग, जब हमें परहेजगारी करनी पड़ती, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे नहीं बैठना, वैसे नहीं बैठना, और ये करना है, वो करना है, इस तरह से नहीं करना, उस तरह से नहीं करना, तो कितनी तंगी महसूस होती है अपनी ज़िंदगी में। इसके बरक्स अगर हम दुनियावी जिस्मानी बदकार लोगों को देखें, गुनाहगार लोगों को देखें, और जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, उसकी तालीम पर नहीं अमल करते, उनकी ज़िंदगी तंग नहीं होती। वो चौड़े रास्ते से जैसे मर्जी खुले डुले होके गुजरे हैं, जब मर्जी सोते हैं, जब मर्जी उठते हैं, जिसके साथ मर्जी फिरते हैं, जो मर्जी नशा करते हैं, जैसा मर्जी लिबास पहनते, जितनी मर्जी जुबान से गालियाँ निकालते, गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, जो उनका दिल करता है वो जितनी मर्जी जिनाकारी करते हैं, जितनी मर्जी शादियाँ करते, जितनी मर्जी औरतें रख लेते, जो उनका दिल करता है वो उसी तरह करते रहते हैं, और वो उसमें खुश रहते हैं, क्योंकि जो वो चाहते हैं वो हो रहा है, उनके दिल की मुरादें पूरी हो रही हैं। जिस इंसान के दिल की मुरादें पूरी हों तो वो खुश ही रहता है, लेकिन वक्ती, उसका जहन मुतमईन रहेगा लेकिन वक्ती, उसकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी लेकिन वक्ती। लेकिन जो
इंसान अक्लमंद है और परहेजगारी को जान लेता है कि मैंने ये इसलिए जीनी है ये तंग जिंदगी, और वो रास्ता सुकड़ा है। कौन सा रास्ता? जो मसीही जिंदगी गुजारता है वो रास्ता सुकड़ा है, उसमें बहुत तंगी, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। जब हम मसीह के कलाम पर अमल करके हम ये कहेंगे नहीं, हमने ऐसे लोगों में बैठ के याशी नहीं करनी, हमने ज़्यादा टीवी नहीं देखना, हमने टीवी देखना ही नहीं, हमने गाने सुनने नहीं है, इससे बेहतर है मैं गैर जुबान में दुआ करूं, इससे बेहतर है मैं प्रस्तिश कर लूं, मैं ज़बूर सुन लूं, मैं गीत सुन लूं, मैं दुआ में रहूं, मैं लोग जो मुझे इंसान मिलेगा मैं उसको कलाम सुनाऊं। तो ये तंग रास्ता, सुकड़ा, आपको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही होगी कि ये कैसी ज़िंदगी है, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई दिल नहीं, मेरी कोई मुराद नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं, मेरे कोई ख्याल नहीं, मेरी कोई मर्ज़ी नहीं, सब मर्ज़ी खुदा की है, वो जो कहेंगे वो करता जाऊं, या मेरे माँ बाप जो कहेंगे वो करता जाऊं, या जो मेरा चपान सिखा रहा है वो करता जाऊं, या जो मेरे उस्ताद ने स्कूल में कह दिया तो वो करता जाऊं, मेरा भाई जिन बातों से मना करता जाता वो करूं, मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं। अगर आप वाकई ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो लिखा है सुकड़ा, वो रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है। अक्लमंदी क्या है? ज़िंदगी में पहुंच जाना कि मर जाना। पता चले कि जी आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, आपको कैंसर है, परहेज़ करना शुरू करेंगे, दवाइयाँ लेना शुरू करेंगे कि कहेंगे जो होता है फिर देखी जाएगी, कोई बात नहीं, मर ही जाना है। तो ये बेवकूफ़ी की निशानी कि जो अपने आप को प्यार नहीं करता, अपने आप को दुख तकलीफ और परेशानी में रखता है, और ये परेशानी भी कोई गैर फानी नहीं है, ये तो आप मर जाओगे। हमने गैर फानी के लिए अगर मेहनत कर ली तो हमें गैर फानी मोहब्बत है अपने आप से, कि जो हम ऐसी मोहब्बत अपने आप से कर रहे हैं कि हमें कभी तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे तो हम सुकड़ा रास्ता अपना लेंगे, लेकिन याद रखो कि ये सुकड़ा रास्ता चंद सालों के लिए है सिर्फ, लेकिन अब तक ऐसे चौड़े रास्ते में जाएंगे जिनके रास्ते जो हैं सोने के बने हुए हैं, जहाँ पे मकान है, जहाँ पर हमारा बाप हमें सब कुछ देगा, यहाँ पर हम तंगी से रह लें। तो हम एक और आयत भी देखेंगे खुदावंद के कलाम में से। हम इस कलाम को मज़ीद सीखने के लिए देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब उसकी 23वीं आयत। सब कुछ रवा तो है मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं, सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें तरक्की का बायस नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब आपको वैसे ही, अगर आप कार्टून भी देख रहे हैं, अगर उसमें ऐसी कोई भी गंदगी नहीं है और आपके अंदर कोई गंदगी नहीं आ रही, तो भी जब कहा जाता है कि ना देखो, तो हम आपका टाइम बचा रहे थे, खुदावंद आपका टाइम बचा रहे थे। लेकिन आपको कार्टून देखना जिसमें आप अपना वक्त ज़ाया करते हो, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ना आपकी रूह की कोई तरक्की होती है और ना आपको रूह में ये फ़ायदा पहुंचता है कि आपको खुदा के कलाम के मुताबिक बदी में और नेकी में फ़र्क महसूस नहीं होता। आप यीशु मसीह को नहीं जान रहे होते, आप तालीम को खुदावंद की नहीं जान रहे होते, आप कलाम में नहीं बढ़ रहे होते, आप कलाम नहीं जानते, तो फिर आपने ये क्यों देखना है? अगर आप ये कहते हो कि इसमें तो कोई गुनाह नहीं है, हाँ नहीं है, लेकिन आपको इसका फायदा भी नहीं और आपकी रूह को भी कोई तरक्की नहीं मिल रही। आप मसीही तो नहीं ना हो रहे, आप राजबाज नहीं हो रहे, ना आप ईमानदार ठहरे, तो कर क्या रहे हो जिंदगी में? आप सारी जिंदगी गुजार क्या रहे हो? अगर आपको कि मैं तो नबी नहीं, मैं तो ये नहीं, मैं क्या गुनाह करता हूँ? हाँ गुनाह नहीं करते, लेकिन आपने अपनी रूह के साथ कुछ अच्छा भी नहीं किया, आपने अपनी रूह को भी फायदा नहीं पहुंचाया। आप जो कलाम में फल लिखे हैं आपने उनको भी अपने अंदर डाल के अपनी रूह की तरक्की नहीं की। इसी तरह अगर किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है, किसी को बैडमिंटन खेलने का शौक है, किसी तरह का स्पोर्ट खेलने का शौक है, या वो बिजनेसमैन है, वो इन्हीं में बिजनेस करना गुनाह नहीं, वो कहेंगे हम गुनाह तो नहीं ना करें, हम क्रिकेट खेल रहे हैं 8-8 घंटे ग्राउंड्स में चले जाते हैं और घर वापस ही नहीं आते, 8-8 घंटे खेल रहे रहते हैं, और ये गुनाह नहीं है।
स्पोर्ट्स करना ये गुनाह नहीं है, बिजनेसमैन बन के पैसे कमाई जाना, हाँ, और अपना घर का खर्चा चलाना, जिम्मेदारियां उठाना ये गुनाह नहीं है, लेकिन उतना कमाओ जितनी ज़रूरत है। आप क्यों अपना वक्त 24 घंटे बिजनेस में लगा के अपना दिल दिमाग जो है इन्हीं में लगाई रखते हो और अपने दिल दिमाग को जिस्मानी चीज़ों पैसों में इन्वॉल्व रखते हो और अपने दिल और दिमाग को रूहानी बातों को सोचने का वक्त ही नहीं देते, जिससे ना तो आपको कोई फ़ायदा है ना आपकी रूह में तरक्की है। तो फिर ऐसे काम जिससे आपको ना तो फ़ायदा है और ना ही आपकी रूहानी तरक्की हो रही है, तो फिर इन चीज़ों से भी हम क्या करेंगे, अक्लमंद होकर परहेज करेंगे। और अक्लमंद वो है जो सुकड़े रास्ते को अपना लेता है, लेकिन बेवकूफ़ वो है, जैसा कि हमने कलाम में पढ़ा, उसे पिछली वाली आयत है कि बेवकूफ़ी की तरह हम लोग क्या करते हैं, बेवकूफ़ों के माने हम लोग परहेजगारी नहीं करते, चौड़े रास्ते को चुनते हैं। तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। अक्लमंद वो है जो अपनी जान बचाने के लिए परहेज करेगा और उसको पता है कि परहेजगारी के बाद अच्छे नताइज ज़िंदगी के मिलेंगे। और अगर मैं परहेजगारी नहीं करता और बेवकूफ़ी को अपना के परहेजगारी नहीं करता तो ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा और हमेशा की आग में जाना पड़ेगा। इससे बुरा नतीजा कोई नहीं है। आज हमारे पास मसीह यीशु हैं, हम यीशु मसीह के नाम के वसीला से हम अपने आप को खुदा बाप के हुजूर रख सकते हैं और यीशु मसीह के खून के वसीला से अपने बदन को, अपनी रूह को धो सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से तौबा कर सकते हैं और यीशु मसीह के सिखाए हुए कलाम के मुताबिक चलकर अपनी ज़िंदगी को एक परहेजगारी वाली ज़िंदगी बनाकर हम इस हमेशा की आग से, बुरे नताइज से बचा सकते हैं और यीशु के पास हमेशा के लिए महफूज रह सकते हैं। अब हम ये कलाम सुनकर हम ये देखें कि परहेजगारी वाली ज़िंदगी जो रास्ता हमें सुकड़ा देती है, तंग देती है, बोझ महसूस होता है, बोर होते हैं, कैद महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता, दबे हुए महसूस करते हैं, लेकिन ये सोच लो ये अक्लमंदी वाला सुकड़ा रास्ता आपने अपनाया है। मैं दुआ करूंगी खुदा आप सबको बहुत बरकत दें और आप ये अक्लमंदी से सुकड़ा हुआ ही रास्ता अपनाओ ताकि हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाओ। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए और हम सब इस परहेजगारी के फल को ना चीज़ ना जाने, बेकदरी ना करें और जहाँ जहाँ हमें परहेजगारी करनी चाहिए, जहाँ जहाँ हमें परहेज़ करना चाहिए हम परहेजगारी करें और जितना ज़्यादा आप परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारेंगे आपके अंदर ये परहेजगारी का फल आएगा और कायम भी रहेगा। फल जब आप एक दफ़ा करते हो तो आपने सिर्फ इरादा किया, लेकिन आप इसको अपनी ज़िंदगी में लगातार करते जाओगे तो ये फल आपके अंदर पैदा होगा, बढ़ेगा और कायम रहेगा। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया।